In today's lecture, we will discuss about effects of exercise on muscular system. तो आज का जो हमारा ये इस लेक्चर में ये फोकस रहेगा एक्सरसाइज का क्या रोल रहता है मस्कुलर सिस्टम पे. We see exercise has both short term and long term effects to the muscular system. Firstly, we will see the list of effects. There are the n number of effects of exercise on the muscular system. Among them, we will see some effects of exercise, some list of effects of exercise to the muscular system, and further we will discuss them one by one. लेकिन फर्स्टली हम उनको उन इफेक्ट्स का लिस्ट देखेंगे. व्हाट आर द इफेक्ट्स जो मस्कुलर सिस्टम है. द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ द exercise to the muscular system, that is the hypertrophy. Muscular hypertrophy or hypertrophy of the muscles. ये एक फर्स्ट इफेक्ट है in the list of the various effects of exercise to the muscular system. इस muscular system, इस muscular hypertrophy, it has its own two kinds. It has its own two types. First is sarcoplasmic hypertrophy, and the second one is the sarcomere hypertrophy. And the sarcomere hypertrophy is also called myofibrillar hypertrophy, right? So these are the two subtypes of the muscular hypertrophy. And this muscular hypertrophy is one of the main effect, long term effect of exercise to the muscular system. ये हाइपरट्रॉफी है क्या, इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे. पहले हम लिस्ट ही जानेंगे कि कौन कौन से इफेक्ट्स हैं. एंड द सेकंड इफेक्ट वी सी सेकंड इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम, दैट इज द हाइपरप्लेशिया. एंड हाइपरप्लेशिया जो है, इट इज द सेकंड इफेक्ट. इन थर्ड, लुकिंग एट द थर्ड इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज to the muscular system, that is the increased glycogen storage. Glycogen storage जो है, increase in glycogen storage. And fourth, in the list of the effects of the exercise to the muscular system, we see that it is increase in lactic acid tolerance. Increase in lactic acid tolerance. Likewise, we have one more effect. The effect at the fifth point, we see it is delays fatigue. And sixth effect to the muscular system of exercise, to the muscular system जो exercise का effect है, that is increase in myoglobin storage. There is the increase in myoglobin storage due to the exercise, due to the regular type of the exercise. And the seventh effect, we see it is the weight management. Weight management is one of the effect, and in this weight management, we see that exercise controls extra fat that is deposited in our muscles. That exercise controls that, and exercise prevents to gain the excessive weight. And in the same way, simultaneously, exercise prevents and exercise maintains weight loss. And these aspects we will discuss in the weight management. This is one of the effect. And the eighth effect in the list of the effects of the muscular effects of exercise on the muscular system, that is the muscle atrophy, right? And the least but not last among the effects of exercise to the muscular system, that is the protein retention. These all are the effects of exercise to the muscular system. Or let us see the first one that I have told to you, that is the muscular hypertrophy. What is muscular hypertrophy or what is hypertrophy? Hypertrophy है क्या, और hypertrophy और exercise का क्या relation है, इसी को पहले हम one by one करके पढ़ेंगे. तो first we see it is the hypertrophy. What does hypertrophy mean or muscular hypertrophy mean? We see that hypertrophy refers to the increase in muscle mass. When there is increase in muscle mass, जब
आपके मसल का मास, जिसको वेट बोलती है, वेट दैट इज नॉट वेट, इट इज मास, जो जब आपके मास मसल मास जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक। व्हेन इट कम्स टू द मसल मास, जब मसल मास की बात आती है, वी सी इट हैज टू एस्पेक्ट्स. what are those aspects? Those aspects are size and strength. When there is increase in the muscle mass, we know it is increase in the muscle size, it is increase in the strength, muscle strength. In simple words we can say that जब मसल में मास बढ़ जाएगा, मसल्स का मास बढ़ जाएगा, मीन्स के मसल्स का साइज बढ़ जाना, मसल्स का मास का बढ़ जाना, मसल्स का साइज का बढ़ जाना, मसल्स का मास का बढ़ जाना मीन्स कि मसल्स की स्ट्रेंथ का बढ़ जाना. इट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी. Hypertrophy, it refers when there is increase in the muscle mass. Usually when there is increase in muscle mass, it is increase in muscle size and simultaneously it is increase in muscle strength. It is called the hypertrophy. And how does this hypertrophy occur? ये hypertrophy कैसे होता है? ये मसल्स में मसल्स का मास कैसे, मसल्स का मास का बढ़ जाना, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाना और मसल्स का साइज बढ़ जाना. How this takes place? It is only because of the exercise. But what type of exercise? Strength type of exercise. When you do the strength kind of exercise, what happens there? There will be the increase in muscle mass. There will be the increase in muscle size. There will be the increase in muscle strength when you follow the strength kind of training. What the strength kind of training means कि जब आप strength टाइप वाली ट्रेनिंग करोगे, मीन्स कि पुशअप्स करोगे, सिटअप्स करोगे, स्क्वाट्स करोगे, राइट, चिन अप्स करोगे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करोगे, आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग को फॉलो करोगे, आइसोटोनिक टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस को फॉलो करोगे, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस करोगे, मीन्स कि स्ट्रेंथ टाइप ऑफ ट्रेनिंग जब आप करोगे, when you do the strength type of training, उस strength type of training में आपने what you have to do, आपने weight लेके ट्रेनिंग करना है. Strength type of training involves when you do the training against the resistance, आप लोड लेके ट्रेनिंग कर रहे हो. लाइक कि जब जिमर्स जिम करते हैं वो लोड लेके ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस लेके आपने ट्रेनिंग लेना, आपने ट्रेनिंग करना है. वेट लिफ्टिंग जब कर रहे हो, वेट उठा के आपने ट्रेनिंग करनी है. और व्हेन यू फॉलो सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग बट एट द कंसिस्टेंटली जब आप कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग को फॉलो करोगे, जब आप कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग को फॉलो करोगे, जब आप कंटिन्यूअसली इस टाइप के एक्सरसाइजेस करोगे, जब कंटिन्यूअसली रेगुलर बेसिस पे आप ये चीजें करोगे, तो व्हाट विल हैपन देयर विल बी द इंक्रीज इन मसल मास. Simply there will be increase in the muscle size and there will be increase in the muscle strength. This phenomena is called the muscular hypertrophy. Right? It is because of this regular exercise, especially that when you do the strength type of training. Or this muscular hypertrophy, it has its own two types. I have early at the very initial, when I start the video, when I start the lecture, at that time I have told to you that this muscular hypertrophy, it has its two own types, subgroups. One is the sarcoplasmic hypertrophy and second is the sarcomere hypertrophy. Right? तो ये क्या है, ये मस्कुलर हाइपरट्रॉफी को मैंने बताया है. अब ये सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी क्या है और सर्कोमियर हाइपरट्रॉफी क्या है, ये जाने पहचाने वर्ड्स लगते हैं हमें. ये सर्कोप्लाज्मिक और सर्कोमियर व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल, जो मैंने आपको पढ़ाया पिछले लेक्चर्स में, जो मैंने आपको बताया है, तो ये वही लगता है कि सर्कोप्लाज्मिक और सर्कोमियर, ये उस स्ट्रक्चर में, ये जाने उस लेक्चर्स में मैंने बताया ये क्या है, ये तभी ये जाने पहचाने वर्ड्स लगते हैं हमें यहाँ पे. तो ये क्या है, ये सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी. तो सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी इज वेट ये सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी क्या है. इस हाइपरट्रॉफी के टू टाइप्स हैं, सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी एंड सर्कोमियर हाइपरट्रॉफी. और सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी मीन्स व्हेन देयर इज इंक्रीज इन साइज, इन मसल साइज. जब मसल साइज आपका बढ़ेगा, जब आप ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग कर करके ऐसी टाइप ऑफ एक्सरसाइज फॉलो करोगे, स्ट्रेंथ टाइप ऑफ ट्रेनिंग को फॉलो करना है, लेकिन स्ट्रेंथ टाइप ऑफ एक्सरसाइज में भी उन एक्सरसाइजेस को फॉलो करना है जिससे आपका मसल साइज बढ़ेगा.
तो जब मसल साइज बढ़ेगा दैट वी कॉल द सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। देखो क्या होता है, जो जिमर्स होते हैं या जिमर्स के बगैर भी जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, सम पीपल वांट टू प्रायोरिटाइज टू इंक्रीज मसल साइज एंड सम अदर पीपल वांट टू प्रायोरिटाइज इंक्रीज इन देयर मसल स्ट्रेंथ। कुछ मसल स्ट्रेंथ ही गेन करना चाहते हैं, कुछ प्रायोरिटाइज अपने प्रायोरिटाइज बेसिस पे ट्रेनिंग करते हैं, कुछ साइज इंक्रीज करते हैं। तो दैट इज व्हाई आई हैव डिफरेंशिएटेड दिस थिंग कि सर्कोप्लाज्मिक अलग साइज कैसे बढ़ जाता है और साइज मसल्स में कैसे बढ़ जाता है, और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर करके, स्ट्रेंथ टाइप ऑफ एक्सरसाइज कर करके स्ट्रेंथ कैसे बढ़ जाती है मसल्स में। तो इस सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी सिंपली व्हेन देयर इज द इंक्रीज इन द साइज मसल साइज ड्यू टू द एक्सरसाइज, तो उसको क्या कहते हैं, उसको सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। इसको डीपली पढ़ने के लिए वी विल कंसल्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल, वी विल कंसल्ट दिस वर्ड, दिस सर्कोप्लाज्म। जो मसल स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर की बात जब हम करेंगे तो वी विल टच दैट, व्हेन यू विल टच दैट देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड द इफेक्ट। आपको तभी इफेक्ट समझ में आएगा, ऐसे ही नहीं कि हमने इफेक्ट बताया लेकिन स्ट्रक्चर का पता नहीं है। तो एक्सरसाइज का इस एक्सरसाइज का इफेक्ट है सर्कोप्लाज्म पे है, तो सर्कोप्लाज्म पे कैसे इफेक्ट करता है तो उस मैकेनिज्म को पता होना चाहिए, तो तभी आप इस चीज को यू विल इजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग। इफ यू अगर आप इस चीज को कंसल्ट नहीं करोगे, कि स्ट्रक्चर को कंसल्ट नहीं करोगे, उस चीज को फिर इस एक्सरसाइज के साथ इंटीग्रेट नहीं करोगे, तो आई थिंक के बहुत ही मुश्किल होगा समझना ये चीज, इफेक्ट बहुत ही मुश्किल होगा। ये सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी, सर्कोमियर हाइपरट्रॉफी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो दैट इज व्हाई आई विल कंसल्ट इट। तो फॉर दैट हम देखेंगे कि मसल्स में जो सर्कोप्लाज्म है क्या, टॉपिक तो नहीं है सर्कोप्लाज्म, बट in order to understand the effect of exercise on the sarcoplasm, we have to consult the structure of the skeletal muscle, in which we see there is the sarcoplasm. There are the many things when it comes to the structure of the muscle. तो sarcoplasm है क्या? देखो मसल जो skeletal muscle जो है, राइट, ये skeletal muscle है। से फॉर एग्जांपल इस skeletal muscles में कनेक्टिव टिश्यू की बॉन्डिंग भी है। कनेक्टिव टिश्यू का रोल इसमें भी होता है कि कनेक्टिव टिश्यू विच बिंड्स द बोन टू मसल, तो उसका भी रोल रहता है। कनेक्टिव टिश्यू में एक एंडोमाइशियम कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये एंडोमाइशियम एक कनेक्टिव टिश्यू है। इस कनेक्टिव टिश्यू के नीचे beneath दिस कनेक्टिव टिश्यू, इस से फॉर एग्जांपल दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू, इस कनेक्टिव टिश्यू के नीचे यू आर फैमिलियर टू दिस थिंग कि सेल का अपना मेम्ब्रेन होता है। तो इस कनेक्टिव टिश्यू के beneath दिस कनेक्टिव टिश्यू, बिलो दिस कनेक्टिव टिश्यू, इस कनेक्टिव टिश्यू जब स्केलेटल मसल की बात करेंगे, ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर्कोप्लाज्म और इफेक्ट कैसे है। तो एंडोमाइशियम के नीचे सेल का मेम्ब्रेन होता है, उस सेल के मेम्ब्रेन को सर्कोलीमा बोलते हैं, राइट। इस सेल मेम्ब्रेन को स्केलेटल मसल्स में जो होती है इसको सर्कोलीमा बोलते हैं। दिस सर्कोलीमा इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस सर्कोलीमा इट इज जो एंडोमाइशियम कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। beneath दिस एंडोमाइशियम देयर इज द सेल मेम्ब्रेन, दैट सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सर्कोलीमा, राइट। उसके बाद इस सर्कोलीमा के नीचे beneath दिस सर्कोलीमा, सीक्वेंस में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, beneath दिस सर्कोलीमा देयर इज द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, there is the cytoplasm of the cell. This cytoplasm of the cell we call it is the sarcoplasm. इसी साइटोप्लाज्म को, जो सर्कोलीमा सेल मेम्ब्रेन के नीचे एक साइटोप्लाज्म होता है, सेल का अपना एनवायरनमेंट होता है, तो इन दैट वहां पे साइटोप्लाज्म सेल का होता है, इसी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल को क्या बोलते हैं, सर्कोप्लाज्म, राइट। इसको सर्कोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। अब आया समझ में ये सर्कोप्लाज्म है क्या। और ये सर्कोप्लाज्म ये जो है इट इज द कनेक्टिव, इट इज नेटवर्किंग सिस्टम, ये नेटवर्किंग सिस्टम है। इस नेटवर्किंग सिस्टम में बहुत सी चीजें होती हैं। इन दिस नेटवर्किंग सिस्टम, इन दिस सर्कोप्लाज्म, in this cytoplasm of the cell that we call the sarcoplasm, there are the various things, various essential things
which are required for the production, for the muscle contraction and the relaxation. मसल की कंट्रैक्शन के लिए जो चीजें चाहिए ना, वो इस नेटवर्क में होती है, इस सार्कोप्लाज्म में होता है. This that is why this sarcoplasm, it is the component of the muscle fibers. muscle fibers का component है, right? तो इस नेटवर्किंग सिस्टम में है क्या? इस नेटवर्किंग सिस्टम में इट कंटेन्स मेनी थिंग्स. इसमें बहुत सी चीजें हैं इस नेटवर्किंग सिस्टम में, इस सार्कोप्लाज्म में, राइट? इसमें फ्लूइड है, इट कंटेन्स फ्लूइड. एक तो इसमें फ्लूइड है, राइट? दूसरा इसमें एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट? सेकंड, थर्ड, इसमें क्रिएटिन फॉस्फेट है. क्रिएटिन फॉस्फेट को दूसरा नाम बोलते हैं फॉस्फोक्रिएटिन भी, उल्टा पुलट करना है, सीपी और पीसी, क्रिएटिन फॉस्फेट और फॉस्फोक्रिएटिन. इसमें क्या है? इसमें ग्लाइकोजन है, इसमें वाटर है, राइट? These things, the sarcoplasm contains fluid, the sarcoplasm contains adenosine triphosphate, the sarcoplasm contains creatine phosphate, the sarcoplasm contains phosphocreatine, the sarcoplasm contains this networking system which is in the skeletal muscle, it contains glycogen, it contains water. So these are the things which are in the sarcoplasm. जो sarcoplasm है, these are the essential things for the contraction of the muscle. muscle के लिए ये चीजें जरूरी है, राइट? अब क्या है, अभी तक इफेक्ट हमने नहीं पढ़ा है कि एक्सरसाइज से कैसे इफेक्ट पड़ता है. अब हम आएंगे उस बात पे. ड्यूरिंग वर्कआउट, रिमेंबर द पॉइंट, द रिमार्केबल पॉइंट इन दिस, दीज आर ऑल द रिमार्केबल पॉइंट्स, बट द नोट करने वाला चीज जो इफेक्ट के रिलेटेड है, दैट इज दिस, कि ड्यूरिंग वर्कआउट के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान, रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज के दौरान ये जो चीजें हैं, ये जो मसल इस सार्कोप्लाज्म में होते हैं, फ्लूइड है, वाटर है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ग्लाइकोजन है, क्रिएटिन फॉस्फेट है, फॉस्फोक्रिएटिन है, वाटर है, ये चीजें, ठीक है? और ये फ्लूइड, स्पेशली ये फ्लूइड, जो ये फ्लूइड है, राइट? इस सार्कोप्लाज्म में फ्लूइड होता है. ड्यूरिंग वर्कआउट ये फ्लूइड जो होता है, इट एक्ट्स एज एनर्जी रिसोर्स एक्ट करता है. और ये फ्लूइड जो होता है, दैट सराउंड्स द मायोफिब्रिल्स इन द मसल्स, दैट सराउंड्स द myofibrils in the muscle fibers, muscle cells or muscle fibers. और यही एनर्जी प्रोवाइड करता है मसल्स को ड्यूरिंग वर्कआउट. मोर एंड मोर फ्लूइड मूव्स टू द मसल्स व्हेन, जब क्या होता है, व्हेन योर मस्कुलर टिश्यू इज इन्वॉल्वड इन सम एक्टिविटी, जब वहां पे एक्टिविटी कोई होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज के दौरान जो सार्कोप्लाज्म में फ्लूइड होता है, यही फ्लूइड एनर्जी रिसोर्स एक्ट करता है, जो फ्लूइड दैट सराउंड्स द मायोफिब्रिल्स इन द मसल फाइबर्स, राइट? अब जब वर्कआउट करते हैं हम, जब एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने से, स्ट्रेंथ टाइप ऑफ ट्रेनिंग करने से, स्ट्रेंथ काइंड ऑफ एक्सरसाइज करने से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड मसल की ओर चला जाता है, राइट? ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड जो है वो मसल्स की ओर चला जाता है. जब मसल्स की ओर ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड चला जाता है, व्हाट हैपेंस देयर, द मसल विल अपीयर बिगर, द मसल विल अपीयर लार्जर. मसल जो है वो बिगर दिखने लगती है एंड लार्जर दिखने लगती है. See this thing, I will let you, I want you to understand this thing with the help of the diagram. Say for example, this is the muscle, these are the muscle cells, एक दूसरे के साथ है ना अटैच. ये नॉर्मल मसल है, राइट? ये नॉर्मल मसल है. एंड दिस मिड पॉइंट, दिस इज द दिस इज न्यूक्लियस, राइट? इट कंटेन्स मेनी न्यूक्लियस. ये सिंपल मसल है. अब जब यही मसल एक्सरसाइज के दौरान
ये जो सर्कोप्लाज्म में फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड एनर्जी रिसोर्स है। जब आप काम करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ ट्रेनिंग करते हो, तो ये फ्लूइड जो है इट मूव्स मोर टू द मसल्स, मसल्स की ओर ज्यादा ज्यादा चला जाता है। जब ये मसल्स की ओर ज्यादा ज्यादा चला जाता है तो मसल विल अपीयर बिगर एंड लार्जर। और मसल जो है, मसल्स में जब फ्लूइड ज्यादा चला गया है, एंड दिस स्पेशली दिस फ्लूइड एक्ट्स एज द एनर्जी रिसोर्स, तो मसल जो है ये बिगर दिखने लगी। मसल्स का साइज जो मीनस की साइज बढ़ गया, मीनस के मसल्स का साइज जो है वो लार्ज होने लगा, और ये इट अपीयर्स बिगर, इट अपीयर्स लार्जर, और ये लार्जर दिखने लगी, मीनस के देयर इज द इंक्रीज इन साइज। But remember this thing, there is increase, when there is the increase in size, that we call the sarcoplasmic hypertrophy, not when they not कि जब strength में increase होगा। In this sarcoplasmic hypertrophy there is the increase in size, muscle size, not increase in the strength। अब sarcoplasmic hypertrophy है क्या? यही हाइपरट्रॉफी, ये मसल अब ज्यादा बड़ी दिखने लगी है क्योंकि ड्यू टू द फ्लूइड, जो फ्लूइड कंटिन्यूसली आ रहा है मसल्स की ओर। अब तक मसल ऐसी थी, अब जब मसल्स आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते हो, तो कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ एक्सरसाइज करते हो, तो ये मसल्स में ज्यादा फ्लूइड चला जाता है और मसल ऑटोमेटिकली बिगर दिखने लगती है और बड़ी दिखने लगती है, और साइज जो है इसका इंक्रीज होता है। अब ये मीनस की साइज बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़नी बढ़ जाती है। अब सर्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी मीनस व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। जब इस फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा, जो फ्लूइड जो होता है वो सर्कोप्लाज्म में होता है, राइट। सर्कोप्लाज्म में जो फ्लूइड होता है, व्हेन देयर इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ दिस फ्लूइड, then this increment in the volume of this fluid we call it, there is the increase in the size, increase in the muscle size, this is called the hypertrophy। तो एक्सरसाइज से, स्ट्रेंथ टाइप ऑफ ट्रेनिंग से ये फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। जब फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जो फ्लूइड जो है मसल्स की ओर ड्यूरिंग वर्कआउट मूव होता है, तो ज्यादा से ज्यादा मूव होता है, तो मीन्स के मसल विल अपीयर बिगर एंड द साइज ऑफ द मसल्स विल इंक्रीज, नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल विल इंक्रीज in the sarcoplasmic hypertrophy। So this is the effect, that is why I have consulted the structure, that is why I have told to you the structure in the sequence, so at the end you will understand easily the mechanism, you will understand easily the effect, right? Ab the next point we have, that is the sarcomere hypertrophy, it is the second type of the hypertrophy। अब sarcoplasmic तो पढ़ा, तो sarcomere पढ़ेंगे। sarcomere hypertrophy है क्या? सर्कोमियर हाइपरट्रॉफी से ये कैसे मसल्स में होता है, तो फॉर दैट उसके लिए भी हम वी विल कंसल्ट द स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर करके इस चीज को मैं समझाऊंगा इन ए वेरी वेरी इजी वे। अब जो सेकंड सब टाइप है, जो हाइपर मस्कुलर हाइपरट्रॉफी का सब टाइप है, दैट इज द sarcomere hypertrophy। And what does this sarcomere hypertrophy and what is the relation of the exercise to this sarcomere hypertrophy? तो जो sarcomere hypertrophy है, ये sarcomere hypertrophy, इस चीज को भी समझाने के लिए we will consult the structure of the skeletal muscle। Do you know कि जो skeletal muscle है, skeletal muscle जो है ये किस चीज से बनी हुई होती है? मसल फाइबर्स और मसल सेल्स, ये मसल सेल्स से बनी हुई होती हैं और मसल फाइबर से बनी हुई होती है, राइट। और आफ्टर दैट वी विल सी दैट दिस मसल फाइबर, दैट दिस मसल सेल, इट कंटेन्स बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर्स। It contains bundles of the muscle fibers, right? जो skeletal muscle है, skeletal muscle is composed of the muscle fibers, right? It is obvious to we people that it is composed of the muscle fibers, and this muscle fibers it contains the bundles of the muscle fibers. That these bundles of the muscle fibers are known as the myocytes, right? These are known as the myocytes.
ये स्केलेटल मसल मायोसाइट से बनी हुई होती है। और मायोसाइट क्या है? मायोसाइट इज द मायोसाइट इज द बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर्स। ये मसल के बंडल, मसल फाइबर्स के बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर्स, और इसी से जो है स्केलेटल मसल बनी हुई होती है, राइट। और ये जो मायोसाइट है, ईच मायोसाइट कंटेन मायोफिब्रिल्स। हर एक मायोसाइट में मायोफिब्रिल्स होते हैं, राइट। Each myocytes contain myofibrils. प्लीज याद रखिएगा आप, ये नोटिसेबल चीज है, रिमार्केबल चीज है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन the hypertrophy, especially on the sarcomere hypertrophy, especially on the myofibrillar hypertrophy, right? I want you to understand that what is sarcomere hypertrophy. So for that I have told to you that this skeletal muscle, it is made up of it is composed of the muscle cells or muscle fibers, and the muscle fiber contains bundles of the muscle fibers, and these muscle bundles of the muscle fibers known as the myocytes, means that skeletal muscle is composed of the myocytes, and each myocyte contain myofibrils. And what does this myofibril mean? This myofibril plays crucial role, and it, due to this myofibril, it produces contraction and relaxation in the muscles, and this contraction and the relaxation in the muscles is because of this myofibril, right? How we can say that what is the effect, where is the effect कहाँ पे है? आप एक्सरसाइज का इफेक्ट कहाँ पे है? मायोफिब्रिल्स और एक्सरसाइज का क्या रिलेशन है? आप अब व्हेन यू डू द स्ट्रेंथ टाइप ऑफ ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस करते हो, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, जब आप स्ट्रेंथ काइंड ऑफ ट्रेनिंग करते हो, फॉलो करते हो कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, कंटिन्यूअसली, रिपीटेडली, जब आप एक्सरसाइज करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो क्या होता है? ये जो मायोफिब्रिल्स जो होते हैं, ये मायोफिब्रिल्स बढ़ने लगते हैं। ये मायोफिब्रिल्स मायोसाइट्स में होते हैं, और वी कैन से दैट सर्कोमियर हाइपरट्रॉफी, ये जो मायोफिब्रिल्स जो होते हैं ये सर्कोमियर में होते हैं, राइट। सर्कोमियर जो होता है ना स्केलेटल मसल्स में, जो वर्टिकली जेड लाइन्स हैं, राइट, जो रिपीटेड मैनर में एक्टिन एंड मायोसिन है, उसको सर्कोमियर बोलते हैं, जो रेगुलरली अरेंज्ड है वहां पे। तो इसी सर्कोमियर में मायोफिब्रिल्स है, मायोफिब्रिल्स जो होते हैं ये सर्कोमियर में होते हैं। और we can say that when there is the increase in the number of myofibrils due to the strength type of exercise, due to the weight training, due to the training against resistance, due to strength kind of training, due to the regular exercise, due to the regular type of the strength exercises, due to the regular type of training against resistance, what happens there happens that there is the increase in the number of the myofibrils. This myofibrils जो होते हैं, it produces contraction relaxation in the muscles, and ये myofibrils जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? ये सर्कोमियर में होते हैं, ठीक। ये मायोफिब्रिल्स जो है ये हर एक मायोसाइट में होते हैं, और ये मायोसाइट जो है, मायोसाइट से ही स्केलेटल मसल बनी हुई होती है। और मायोसाइट क्या है? इट इज द बंडल ऑफ द मसल फाइबर्स। each bundle of the muscle fiber, each myocyte contain myofibrils, and this myofibrils is in the sarcomere. And when due to the exercise, due to the strength type of training, when there is the increase in the number of the myofibrils, we can come to know that it is called the sarcomere hypertrophy. The sarcomere hypertrophy means कि ये myofibrils का नंबर जो है, ये तादाद जो है ये बढ़ने लगता है एक्सरसाइज करने से, वेट ट्रेनिंग करने से, ट्रेनिंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस करने से ये बढ़ जाता है, इनका नंबर जो है इनका बढ़ जाता है। तो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस देयर हैपेंस द sarcomere, this is called the sarcomere hypertrophy, and especially we can say that तभी इस sarcomere hypertrophy is also known as myofibrrillar hypertrophy. Myofibrrillar hypertrophy, right? This myofibrrillar hypertrophy or the sarcomere hypertrophy is when there is increase in the number of the myofibrils
due to the strength type of exercise, due to the weight training, due to the training against the resistance. And this myofibrillars जो है, these myofibrillars they are in the sarcomere, and these myofibrillars are in the myocytes, and in each myocytes there we see the myofibrillars, and these myofibrillars are in the sarcomere, right? And these myofibrillars produce the contraction and the relaxation in the muscles. And when you expose yourself to the regular exercise, especially the strength kind of training, especially the weight training, especially the training against the resistance, what happens there we see that there increases the number of the myofibrillars. And when there is an increase in the number of myofibrillars, we can come to know that this increase in the number of the myofibrillars cause the muscles to increase in strength and density. This increase in the myofibrillars cause the muscles to increase in strength and density. स्ट्रेंथ और डेंसिटी बढ़ जाती है, यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी बढ़ जाती है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मसल्स का साइज नहीं बढ़ जाता है. सिंपली वी से दैट व्हेन जब मसल्स का साइज बढ़ जाता है, वी कॉल इट इज द sarcoplasmic hypertrophy due to the increase in the volume of the fluid as a result of the exercise, as a result of the strength type of training. We can come to know that is the sarcoplasmic hypertrophy, and there is the increase in the size, not increase in the strength. And when it comes to the sarcomere hypertrophy or myofibrillar hypertrophy, we can come to know that when there is the increase in the myofibrillars, increase in the number of the myofibrillars, this increase in the number of myofibrillars cause the muscles to increase in the strength and the density, means that there is the increase in the strength, not there is increase in the size, muscle size. This mechanism, this phenomenon is called the myofibrillar hypertrophy, and this myofibrillar hypertrophy it occurs as a result of the strength kind of ट्रेनिंग. सिंपली जब स्ट्रेंथ टाइप ऑफ ट्रेनिंग करती हो, एट द इनिशियल क्या होता है, मसल फाइबर, दिस कॉज द मसल फाइबर्स टू डैमेज. ये मसल फाइबर जो है, मसल सेल जो है डैमेज होने लगते हैं, लेकिन साथ साथ में जो बॉडी है, बॉडी इटसेल्फ रिपेयर्स दिस डैमेज. बॉडी ये कंटिन्यूअसली डैमेज भी क्या करता है, रिपेयर करता है. लेकिन क्या होता है, when you expose this strength training, जब आप strength training follow करते हो continuously, this continuous challenging to the muscles, this continuously and repeatedly जो ये एक्सरसाइज फॉलो करते हो, कंटिन्यूअसली जो चैलेंज ऑफ मसल्स को दे रही हो, ये स्ट्रेंथ टाइप ऑफ ट्रेनिंग लेके, ट्रेनिंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस को लेके, व्हाट हैपेंस देयर हैपेंस द एडाप्टेशन इन द मसल्स. मसल्स में इस चीज की एडाप्टेशन होती है, बिकॉज एज वी नो दैट द मसल हैज द मेमोरी, मसल हैज मेमोरी, और मसल जो है ये अडॉप्ट करते हैं इन चीजों को. व्हेन यू डू दीज थिंग्स ऑन द कंसिस्टेंसी बेसिस, जब कंसिस्टेंसी बेसिस पे आप इन चीजों को फॉलो करोगे रेगुलरली, इस चैलेंज को मसल्स को कंटिन्यूअसली एंड रिपीटेडली दोगे, तो व्हाट हैपेंस देयर, इट कैन हेल्प पीपल टू बिल्ड बोथ from sarcoplasmic hypertrophy and the sarcomere hypertrophy. So this is the effect that we call the muscular hypertrophy. This effect is only because of the strength training. This is only because of the exercise, and when you do, especially when you do the strength kind of training consistently, regularly, when you follow the regularly and you give this continuously challenge to the muscles. So at the end, muscles adopt these things, and what happens there, it helps you to build from both sarcoplasmic hypertrophy and sarcomere hypertrophy. Let us see the second effect, that is the hyperplasia. Hyperplasia जो है ये second, ये भी एक effect है, most important effect जो है exercise का, training program का, right, to the muscular system. And what does this hyperplasia mean? Hyperplasia means कि जब आपके मसल सेल्स बढ़ जाएंगे, जब आपका मसल फाइबर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, उस चीज को हाइपरप्लेशिया बोलते हैं. और जो हाइपरप्लेशिया है, इस हाइपरप्लेशिया refers to the increase in the muscle fibers. This refers to the increase in the muscle cells, right? Usually this refers to the increase in the number of skeletal muscle fibers. Hyperplasia means when there is increase in the skeletal muscle fibers. Skeletal muscles में muscle fibers बढ़ने लगेंगे, जब skeletal muscles में muscle cells बढ़ने लगेंगे, that we call the hyperplasia. Hyperplasia means
when there is increase in the number of muscle fibers, when there is the increase in the muscle cells, especially in the skeletal muscle, we call it, it is the hyperplasia. How does this hyperplasia occur? This hyperplasia occur due to extremely high intensity resistance training. ये hyperplasia, ये muscles में muscle fibers कैसे बढ़ेंगी? When you expose yourself to the high, extremely high intensity resistance training, इससे बढ़ जाएगा जब आप हाई एक्सट्रीमली इंटेंसिटी टाइप ऑफ ट्रेनिंग को फॉलो करोगे, राइट? इससे हाइपरप्लेशिया, इससे मसल्स में मसल फाइबर्स बढ़ने लगेंगे, इससे मसल्स में मसल सेल्स बढ़ने लगेंगे। नॉट ओनली इससे ही नहीं, बल्कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं उससे भी हम मसल फाइबर्स बढ़ा सकते हैं। बट we will, our point is that is the exercise, and when it comes to the exercise we can only focus that when you follow extremely high intensity kind of strength training, this will occur in your muscles, that there will be the increase in the number of muscle fibers, there will be the increase in the number of muscle cells, that we call the hyperplasia. This hyperplasia, there are the two ways that hyperplasia can occur in your muscles. दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं, दो क्या बोलेंगे हम, वे आउट हैं, जिन तरीकों से there are the two ways that hyperplasia can occur in your muscles. First जो है, either new muscle fibers are developed from satellite cells, या तो सैटेलाइट फर्स्ट है जिससे आप हाइपरप्लेशिया बढ़ा सकते हैं with the help of the exercise, with the help of especially the extremely high intensity type of exercise and that's anabolic steroids है. तो there are the two ways. Firstly, either muscle fibers are developed, new muscle fibers are developed, नए muscle fibers बनने लगते हैं from satellite cells. How? From satellite cells. And satellite cells क्या है? ये जो satellite cells हैं, these are called the stem cells. इन satellite cells को stem cells बोलते हैं. इन stem cells का क्या रोल रहता है? It plays role that it help us in maintaining the muscle fibers. मसल फाइबर को मेंटेन करना इन सैटेलाइट सेल्स का काम है. मसल फाइबर को रिपेयर करना, टू रिपेयर द मसल फाइबर्स is the crucial role of the satellite cells in the muscles, and to remold the muscle fibers, muscle fiber को remold करना is the crucial role of the satellite cells, and these satellite cells are called the stem cells. इनको stem cells बोलते हैं. इन्हीं stem cells से due to the activation of these stem cells, new muscle fibers are formed. नए मसल फाइबर जो है वो बनने लगते हैं, नए मसल सेल्स जो है वो बनने लगते हैं. फर्स्ट वे. एंड द सेकंड वे, either new muscle fibers are developed from the activation of the satellite cells, or large muscle fibers, they start to split. वो split होने लगते हैं. They split into two or more smaller muscle fibers. बड़े मसल फाइबर जो हैं, ये स्प्लिट होने लगता है दो या दो से ज्यादा मसल फाइबर्स में. दिस लार्ज मसल फाइबर, इट splits into two or more smaller muscle fibers. As a result, न्यू मसल, इससे इस स्प्लिट होके भी मसल फाइबर्स जो है वो बढ़ने लगता है, मसल फाइबर्स का नंबर जो है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि ड्यूजन हुआ ना यहाँ पे. जैसे कि मैं इस चीज को समझाने के लिए थोड़ा सा रिप्रोडक्शन की ओर चले जाएंगे हम. दैट इज नॉट आवर पॉइंट, बट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वहां पे क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल मल्टीप्लिकेशन होता है. जब वो मैकेनिज्म मुझे नहीं बताना है कि when two cells meet to each other and they form a single cell called the tiny pins like a single cell called the zygote, and after that this is process called the fertilization, and after that there is the cell division, there is the cell multiplication, and cell division होके दो सेलों का 4 बन जाता है, 4 का 6 बन जाता है, 6 का 8 बन जाता है. तो सेम उसी सेल डिविजन जो वहां पे होता है रिप्रोडक्शन में, तो उसी पॉइंट, उस पॉइंट को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस इजीली
ये जो बड़ी जो ये मसल फाइबर जो है, मसल सेल है, ये स्प्लिट होने लगता है, दो या दो से ज्यादा, मीनिंग डिवीजन होने लगता है यहाँ पे फाइबर्स का. तो दैट इज वाई एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ द मसल फाइबर्स एंड नंबर ऑफ द मसल सेल्स दे स्टार्ट टू इंक्रीज. When there is the increase in the number of muscle fibers, especially in the skeletal muscle, we call that is the hyperplasia. And this hyperplasia, this increase in the number of the muscle fibers, this increase in the number of the muscle cells, it is only due to the when you follow extremely high intensity type of the exercises. When you follow the exercise, right? It is only because it is possible only because of that, and it is only also possible because of the anabolic steroid. But our main focus is the exercise. After that, ये चीजें इससे क्या होते हैं, या तो नए फ्रॉम द एक्टिवेशन ऑफ द न्यू एक्टिवेशन ऑफ द सैटेलाइट सेल से नए मसल फाइबर्स बनने लगते हैं, या तो बड़े लार्ज मसल फाइबर जो हैं वो स्प्लिट होने लगते हैं एक से एक दो या दो से ज्यादा स्मॉलर मसल फाइबर्स में. एज अ रिजल्ट मसल फाइबर जो है उनका नंबर इंक्रीज होता है, तो इसी को हाइपरप्लेशिया बोलते हैं. दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस हाईली इंटेंसिटी टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को जो फॉलो करोगे आप, राइट. तो उसके बाद जो ये एक स्टडी के मुताबिक some literature says that there is no increase in the number of muscle fibers. कुछ स्टडीज का कहना है there is no increase in the muscle fibers. muscle fibers नहीं बढ़ सकते because they are conformed at birth. कुछ लिटरेचर का कहना है, कुछ स्टडीज का कहना है there is no increase in the muscle fibers because muscle fibers are conformed at birth. एक्सरसाइज से मसल फाइबर्स नहीं बढ़ते हैं, ये कुछ स्टडीज का कहना है. लेकिन स्टिल देयर आर द सम अदर लिटरेचर्स which defend this. There is increase in the muscle fibers when you do the strength, when you do extremely high intensity type of strength training. वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि they interpret these literatures interpret new muscle fibers जो हैं वो फॉर्म होने लगते हैं, वो बढ़ जाते हैं. कुछ का कहना है वो बढ़ जाते हैं. how they form, how they develop from the stem cell, they develop from the satellite cell. वो डेवलप होते हैं. कुछ का कहना है वो डेवलप होते हैं. कैसे डेवलप होते हैं, न्यू मसल फाइबर का फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्रॉम सैटेलाइट सेल, सैटेलाइट सेल फ्रॉम स्टेम सेल. स्टेम सेल की एक्टिवेशन की वजह से नए नए मसल फाइबर जो है वो फॉर्म होने लगते हैं, राइट. ह्यूमन्स में हाइपरप्लेशिया को मेजर करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज के इट इज डिफिकल्ट टू काउंट द इंडिविजुअल मसल फाइबर्स. इंडिविजुअल मसल फाइबर्स को काउंट करना बहुत ही मुश्किल है. रिलेटिवली व्हेन इट कम्स टू मेल्स का हाइपरप्लेशिया को डिफिकल्ट है मेजर करना ह्यूमन्स में. रिलेटिवली व्हेन इट कम्स टू द मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी को मेजर करना इट इज द इजी. हम कैसे हाइपरट्रॉफी को मेजर करते हैं, बाय यूजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मसल. क्रॉस बाय यूजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मसल. इस चीज से हम हाइपर मस्कुलर हाइपरट्रॉफी को मेजर कर सकते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स. लेकिन हाइपरप्लेशिया जो है डिफिकल्ट है, बट आज हम हाइपरप्लेशिया जो है इसको भी काउंट कर सकते हैं. वी कैन मेजर, वी कैन काउंट द इंडिविजुअल मसल फाइबर्स. हम कैसे इस चीज को मेजर कर सकते हैं, हम इसको भी मेजर कर सकते हैं. वी कैन डायरेक्टली काउंट द फाइबर्स, मसल जो फाइबर काउंट वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं फॉलोइंग नाइट्रिक एसिड डाइजेशन ऑफ द मसल्स. बाय फॉलोइंग नाइट्रिक एसिड डाइजेशन ऑफ अब आज हम डायरेक्टली वी कैन काउंट द मसल फाइबर्स डायरेक्टली बाय फॉलोइंग नाइट्रिक एसिड डाइजेशन ऑफ द मसल फाइबर्स, राइट. So this was the additional point. बट जो हाइपरप्लेशिया है, हाइपरप्लेशिया जब इंक्रीज होगा मसल फाइबर्स में, मसल सेल्स जब बढ़ जाने लगेंगे, जब आप एक्सरसाइज करोगे रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ, तभी आपकी मसल्स में एडाप्टेशन, इस चीज़ की एडाप्टेशन होगी. स्पेशली व्हेन यू डू द स्ट्रेंथ, व्हेन यू डू द एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी
टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इससे हाइपरप्लेशिया, इससे नंबर ऑफ द मसल फाइबर जो है वो बढ़ने लगेंगी. एंड लेट्स मूव ऑन द थर्ड इफेक्ट ऑफ द मस्कुलर, third effect of the exercise to the muscular system is the increase in glycogen storage. ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन स्टोरेज जो है वो इंक्रीज होने लगता है. जनरली ग्लाइकोजन इज जनरली स्टोर्ड इन टू थिंग्स, दो चीजों में जनरली स्टोर होता है, एक तो मसल्स में और दूसरा लिवर में. ग्लाइकोजन दो चीजों में स्टोर होता है. जनरली इट इज स्टोर्ड इन लिवर एंड इन मसल, राइट. उसके बाद जो रेगुलर बेसिस पे हम एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करने से क्या होता है, दिस ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन इट हेल्प्स द बॉडी टू इंक्रीज द ग्लाइकोजन स्टोरेज, दिस रेगुलर बेसिस ऑफ एक्सरसाइज. इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोरेज. रेगुलर बेसिस पे जब हम एक्सरसाइज करते हैं, when you do the regular kind of exercise, रेगुलरली आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, इससे क्या होता है, ये ग्लाइकोजन जो है ये मसल्स में ज्यादा स्टोर होने लगता है. और जो जब ये मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोरेज जब ज्यादा बढ़ेगी, when there is the increase in the glycogen storage in the muscles, as I have already told, this glycogen is stored in the muscle and the muscle and liver, and this glycogen provide the energy when there is the requirement of the energy. जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है, it provides energy, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है. और जब एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज करते हो आप, रेगुलर एक्सरसाइज से ये ग्लाइकोजन स्टोरेज जो है वो मसल्स में बढ़ जाता है, वो मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोरेज बढ़ जाता है. एंड इट विल गिव कंटिन्यूअसली एनर्जी, ये कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड करेगा अप्रोक्सीमेटली फॉर 90 to 120 मिनट्स, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा. इट मीन्स कि एक्सरसाइज से ग्लाइकोजन स्टोरेज मसल्स में बढ़ जाता है. इट इज द इफेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम. एंड द फोर्थ one is increase in lactic acid tolerance. Lactic acid. Fourth effect of exercise, that is the increase in lactic acid tolerance. लैक्टिक एसिड से क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, दैट इज द बाई प्रोडक्ट जो बॉडी में हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है. एंड एज अ रिजल्ट वहां पे पेन एंड सुअरनेस ऑकर्स, पेन एंड सुअरनेस, मसल्स टायर्ड होने लगते हैं. मींस इट इज द इंडिकेशन ऑफ फैटीग. फैटीग की इंडिकेशन है जब आपके मसल्स पैन होने लगते हैं. सुअरनेस, व्हेन देयर इज द सुअरनेस, व्हेन देयर इज द टायर्डनेस, व्हेन देयर इज द पेन इन द एक्सट्रीम पेन इन द मसल्स. तो इससे क्या होता है, जब आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे होते हो, जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, तो रेगुलरली एक्सरसाइज करने से जो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस है, इसकी टॉलरेंस बढ़ जाती है, इसकी टॉलरेंस जो है वो बढ़ जाती है. हाउ, से फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मली आप एक्सरसाइज से पहले आप कोई काम करते हो, फॉर एग्जांपल 20 मिनट्स तक आप कंटिन्यूअसली काम करते हो, से फॉर एग्जांपल लेट्स compare this thing with I want you to understand this के increase in the lactic acid tolerance. lactic acid की tolerance को क्या बढ़ाता है मसल्स में. तो एक्सरसाइज से पहले आप 20 मिनट्स तक लगातार काम करते हो, 20 मिनट्स के बाद आपके मसल्स पेन और सोर होने लगते हैं, टायर्ड होने लगते हैं. लेकिन एक्सरसाइज से पहले जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, मींस कि 20 मिनट्स तक ही आप एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि आपके मसल्स 20 मिनट्स के बाद पेन करने लगते हैं, सोरनेस आने लगता है, टायर्डनेस आने लगती है. लेकिन जब आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे होते हो, जब when you follow the regular type of the exercise, when you regularly do the exercise, जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, तो ये आप 50 मिनट्स
50 मिनट्स के बाद जो है, हाउएवर कि आपके लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होने लगा है, लेकिन 50 मिनट्स तक आप इसको टॉलरेट कर सकती हो। तो मसल्स में ही ये, तो दैट मीन्स मसल्स आर एबल टू tolerate this lactic acid, this pain and this soreness. The muscles are able to tolerate this lactic acid. That is why it is because of the exercise. That is why exercise, it is very important. And second, it is cost effective. And I would here add one point, कि it is medicine. It is that kind of pill. It is that kind of drug. It is that kind of medicine which has no side effect, which is cost effective, and which is medicine without taking medicine, and has n number of benefits. Fifth effect जो exercise का है, we see that it is delay in fatigue में delay करना is because of the exercise. It is due to exercise. देखो, regular exercise delays fatigue. It is obviously, we are all familiar to this thing कि regular exercise delays fatigue. लेकिन regular exercise it delays fatigue. Regular exercise delays fatigue. फैटिक जो है, इट इज मेनली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, फैटिक कैसे फॉर्म होता है, फैटिक जो है ये कैसे टेक्स प्लेस होता है, दिस फैटिक इज मेनली फॉर, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, मेनली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, ड्यू टू द accumulation of lactic acid, due to the formation of lactic acid, or due to the accumulation of lactic acid, and due to the formation of the carbon dioxide and acid phosphate, and due to the formation of acid phosphate. इन्हीं की वजह से फैटिक जो है, मसल्स में फैटिक टेकिंग प्लेस होता है, टेक्स प्लेस होता है, इनकी की वजह से। किसकी वजह से? रेगुलर एक्सरसाइज से फैटिक जो होता है वो डिले होता है। लेकिन फैटिक कैसे फॉर्मेशन होता है, फैटिक कैसे टेक्स प्लेस होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन, जो मसल्स में CO2 फॉर्म होने लगता है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है, या फॉर्मेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड फॉस्फेट। दिस फॉर्मेशन ऑफ carbon dioxide, this accumulation of the lactic acid and the formation of the acid phosphate, it becomes less. Who perform regularly exercise, ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन, एक्यूमुलेशन की लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन एंड एसिड फॉस्फेट, इट बिकम्स लेस अमंग दोज हु परफॉर्म रेगुलरली एक्सरसाइज। जो रेगुलरली एक्सरसाइज परफॉर्म करता है, इन्हीं की वजह से, इनकी फॉर्मेशन की वजह से फैटिग आ जाता है मसल्स में। और जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ये formation of carbon dioxide, accumulation of lactic acid and the acid formation of acid phosphate, it becomes less. ये कम फॉर्म होने लगता है, ये कम accumulate होने लगता है, and that is why वहां पे fatigue में delay आ जाता है। और it is only because of the exercise. It is only because of the exercise, especially the regular basis exercise. Looking at the next point, that is sixth, increase in myoglobin storage. इंक्रीज इन मायोग्लोबिन स्टोरेज। जो इंक्रीज इन मायोग्लोबिन स्टोरेज है, जो लॉन्ग टर्म ऑफ एनारोबिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज, टू टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, एक तो एरोबिक है, दूसरा एनारोबिक है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट है एनारोबिक। Anaerobic means
when you are doing exercise and there is the insufficient amount of oxygen during exercise. जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करने में उस टाइम आपके पास इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, नॉट कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है, मीन्स के इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होता है। उस टाइप आप उस इंटेंसिटी वाली आप एक्सरसाइज कर रहे हो जिस इंटेंसिटी में आपके मसल्स में क्या है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, and you are doing that kind of exercise. That exercise is called the anaerobic type of exercise. And long term effect of the exercise on the muscular system, that is the increase in the myoglobin storage. जब आप anaerobic type of exercise करते हो, right, उस anaerobic type of exercise करने से क्या होगा, उससे regular basis पे उससे myoglobin storage increase होता है। myoglobin storage increase होता है due to the exercise, regular exercise, especially the anaerobic type of exercise, we see that there has been seen the increase in myoglobin storage. myoglobin क्या है? It is the content in muscles. ये muscles में content होता है that carry oxygen to the muscles, to the working tissues. ये working tissues की ओर ऑक्सीजन को कैरी करता है, राइट। जो हीमोग्लोबिन होता है इसकी फंक्शन हीमोग्लोबिन ही जैसी है। हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है, बट द डिफरेंस हियर इज हीमोग्लोबिन इज ब्लड विच इज द कंटेंट, ऑक्सीजन कंटेंट इन ब्लड, दिस इज द ऑक्सीजन कंटेंट इन मसल। हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है, जो ब्लड विद इन द ब्लड जो क्या है ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, रिटेन करता है, ऑक्सीजन कंटेंट है वहां पे, लेकिन ये मसल्स में ऑक्सीजन कंटेंट है, क्योंकि मसल्स को कंटिन्यूअसली जितनी टाइम आप जितना ऑक्सीजन स्टोरेज है, मायोग्लोबिन स्टोरेज है, उतना आप कंटिन्यूअसली काम कर सकते हो विदाउट गेटिंग फैटिग। तो मीन्स कि जब आप एनारोबिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हो, एनारोबिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज से जो ये मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन स्टोरेज जो ये इंक्रीज होता है, मीन्स कि ऑक्सीजन जो है मसल्स में कैपेसिटी बढ़ जाती है, मसल्स आर एबल टू रिटेन द ऑक्सीजन, मसल्स आर एबल टू store the more and more oxygen so that it can provide this oxygen to the working tissues for a long period of time. तो मसल्स में ऑक्सीजन स्टोरेज की कैपेसिटी, मायोग्लोबिन स्टोरेज की कॉम्पिटेंसी जो है, कैपेसिटी जो है, एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। एंड दिस इज ओनली बिकॉज, एंड दिस लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज ओनली बिकॉज व्हेन यू डू द एनारोबिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज, राइट। One more effect of the exercise on the muscular system, that is the weight management. Weight management को हम different aspects से, different पहलू से देख सकते हैं। When it comes to the exercise to the muscular system, we can come to know that एक तो exercise से क्या होता है, weight gain होता है, right, लेकिन एक्सेसिव वेट गेन करने से भी एक्सरसाइज कंट्रोल करता है, और रिलेटिवली वेट लॉस भी होता है। जिसको वेट लॉस करना होता है वो एक्सरसाइज को फॉलो करे, और जिसको गेन करना है उसको भी एक्सरसाइज फॉलो करना है। तो एक्सरसाइज हैज दीज टू इफेक्ट्स जब हम वेट मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो जो फैट होता है, फैट जो होता है रेगुलर एक्सरसाइज से, रेगुलर एक्सरसाइजेस कैन प्रिवेंट फ्रॉम एक्सेसिव वेट गेन, रेगुलर एक्सरसाइज कैन प्रिवेंट फ्रॉम एक्सेसिव वेट गेन, एंड रिलेटिवली इट हेल्प्स टू मेंटेन वेट लॉस। यू सी जो फैट होता है दैट इज डिपॉजिटेड इन द मसल्स, मसल्स में फैट डिपॉजिट होता है, राइट। लेट अस सी जो फैट जो होता है, fat is micronutrient, it is micronutrient, fat is micronutrient which is essential, बॉडी के लिए essential है, micronutrient है। फैट के दो टाइप्स हैं, एक है essential fat और दूसरा है जो essential unnecessary fat, जो अनएसेंशियल है, जो एसेंशियल फैट नहीं है, तो वो भी एक टाइप है। जो अनएसेंशियल फैट है, इस फैट को रेगुलर एक्सरसाइजेस जो है
वो ब्रेक डाउन करता है, राइट। जो फैट जो होता है, फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है। इस एक्स्ट्रा फैट को ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब रेगुलर बेस पे आप वर्कआउट करते हो, ड्यूरिंग वर्कआउट व्हेन यू डू द रेगुलर टाइप ऑफ एक्सरसाइज, योर बॉडी नीड्स एनर्जी। ऑब्वियसली हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए जब आप कोई वर्कआउट करते हो, एंड एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस देयर, योर बॉडी मेटाबोलाइज दिस फैट इनटू ब्लड स्ट्रीम्स। यही फैट जो है ये मेटाबोलाइज होता है इनटू ब्लड स्ट्रीम। मीन्स ड्यूरिंग वर्कआउट ऑब्वियसली आवर बॉडी नीड्स एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए जब आप काम कर रहे हो, जब आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कर रहे हो, जब आप वर्कआउट कर रहे हो। तो एट दैट टाइम यही फैट जो डिपॉजिट होता है हमारी मसल्स में, जो फैट डिपॉजिट होता है, जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होता है, यही फैट मेटाबोलाइज, हमारी बॉडी मेटाबोलाइज करता है इनटू ब्लड स्ट्रीम, राइट। और obviously our muscles, जो muscles हैं, they use proportionally more fat as energy। ये जो बर्न आउट जो फैट हुआ है, ये फैट जो बर्न आउट हुआ है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये बर्न आउट जो हुआ है, ये हमारी मसल्स प्रोपोर्शनली used by muscles as a source of energy। यही metabolized fat our body use more and more this burn fat, this is burn out when you do regular exercise। and यही एक्सरसाइज के दौरान यही फैट जो है ये मसल्स यूज करता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल्स डू नॉट यूज शुगर, डू नॉट टेक शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं मसल्स। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट को यूज नहीं करते हैं मसल्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन यू आर डूइंग एक्सरसाइज। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट जो फैट मेटाबोलाइज होता है, जो एक्स्ट्रा फैट दैट इज deposit in your muscles in the form of fat, extra fat, that extra fat is burning out, that extra fat is that is getting metabolized, your body metabolize that extra fat, and the muscles use more and more this fat as a source of energy। और ये जो source of energy during workout जो होता है, ये फैट जो होता है ये maximally convert एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जब ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो बॉडी जो मसल्स हैं वो मैक्सिमली इसी फैट का यूज करते हैं, और अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बचा के रखता है, अपनी वो मसल्स में वो बचा के रखता है। और इसी से ही बॉडी में क्या होता है, एक शेप मिलती है बॉडी को, और जो एक्स्ट्रा फैट जो होता है बॉडी में वो जो होता है वो बर्न आउट होने लगता है, वो मेटाबोलाइज होने लगता है। और जो मैड फैट जो होता है ये क्विकली बर्न होता है, इट हैज एबिलिटी कि क्विकली बर्न होता है। ये क्विकली बर्न क्यों होता है? एज हैविंग सेड दैट द यूनिवर्सल फैक्ट दैट यू लूज इंचेस लॉन्ग बिफोर यू लूज पाउंड्स, you lose inches long before you lose pounds। तो that is why, because जो फैट जो होता है, फैट is not heavier, rather कि मसल्स जो है, मसल्स आर heavier than the fat, मसल्स हैवियर फैट से होते हैं और फैट जो होते हैं ये हैवियर उतने नहीं होते हैं। दैट इज वाई कि ये इजीली ये मेटाबोलाइज होते हैं, ये इजीली ब्रेक डाउन होते हैं ड्यूरिंग वर्क आउट, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग रेगुलर बेस ऑफ एक्सरसाइज। जो आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हो तो ये इजीली क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। और इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हो, आप किस ड्यूरेशन से कर रहे हो, आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कितने सेट्स लेते हो, कितने रिपीटेशंस के साथ एक्टिविटी करते हो। दैट इज व्हाई इट डिपेंड्स अपॉन यू। द मोर इंटेंस द एक्टिविटी, द मोर फैट यू बर्न।
that is why it is the long term effect of the exercise. That is the weight management. weight management में आपको बताएं weight gain करने भी हेल्प करता है और weight loss में भी हेल्प करता है और excessive weight gain से भी बचाता है और weight loss होने से भी बचाता है. 8th point, that is the muscle atrophy. Muscle atrophy as an effect of exercise on muscular system. It means wasting. Muscle atrophy means wasting or thinning. Wasting or thinning or loss of muscle tissue. मसल एट्रोफी मीन्स कि जब आप कोई काम ही नहीं करोगे, कॉन्स्टेंटली आप एक ही जगह बैठोगे, ऑब्वियसली व्हाट हैपन कि मसल्स में कमजोरियां आनी लगेगी, मसल जो है वो थिक होने लगेंगे, मस्कुलर टिश्यू है जो है वो लॉस होने लगेगा. दैट वी कॉल्ड द मसल एट्रोफी. मीन्स कि देयर इज द डिक्रीज इन द मसल मास. मसल में साइज भी कम होगा, decrease in muscle mass. There is decrease in muscle mass, means कि when there is decrease in muscle mass, obviously there will be the size जो muscle का होगा वो कम होगा और muscle की strength भी वो भी loss होगी. That we call the muscle atrophy. And how occurs this muscle atrophy? It occurs due to the inactivity, due to the lack of the workout, due to the lack of exercise, due to the lack of workout, due to the lack of activity. जब आप एक्टिविटी ही नहीं करोगे तो मसल एट्रोफी आएगी, थिनिंग आएगी मसल्स में, लॉस ऑफ टिश्यू होगा, डिक्रीज इन मसल मास होगा, डिक्रीज इन साइज होगा, डिक्रीज इन स्ट्रेंथ होगी मसल्स में, मीन्स की वेस्टिंग हो जाएगा मसल. एंड वंस यू रिज्यूम द एक्टिविटी, जब आप एक्टिविटी करने लगोगे, जब आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे, जब आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करोगे, द मसल्स विल ऑफन रिकवर फ्रॉम मसल एट्रोफी. द मसल्स विल ऑफन रिकवर फ्रॉम मसल एट्रोफी, राइट. एंड द लास्ट least but not last, that is the protein retention. 10th, protein retention. Scientific type of exercise, scientific type of training program, scientific type of designed and scientific exercises help us you to retain the protein in muscles. जब आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करोगे तो लेकिन सिस्टमेटिक होना चाहिए, डिजाइनर होना चाहिए, एक साइंटिफिक डिजाइनर प्रोग्राम होना चाहिए. इससे मसल्स में जो प्रोटीन होता है वो रिटेन रहता है. इट हेल्प्स टू रिटेन द प्रोटीन इन योर मसल्स. सो इट विल हेल्प यू टू डिले द डिक्रीज इन लीन बॉडी मास. लीन बॉडी मास, जितने हम बड़े हो जाएंगे, जितने बूढ़े हो जाएंगे, उतनी हमारी बॉडी में जो लीन मास जो होगा ना वो कम होने लगेगा और फैट जो है वो ज्यादा एक्यूमुलेट होने लगेगा, राइट. और स्ट्रेंथ भी है, स्ट्रेंथ भी कम होने लगेगी, राइट. अब जब आप एक्सरसाइज करोगे, साइंटिफिक एंड कंसिस्टेंसी के साथ एक्सरसाइज करोगे तो इट विल डिले करेगा. एक तो प्रोटीन रिटेंशन में हेल्प करेगा, दूसरा क्या होगा, डिलेइंग द डिक्रीज ऑफ लीन बॉडी मास. लीन बॉडी मास में डिले करेगा एंड स्ट्रेंथ लॉस होने में भी डिले करेगा. So these were the effects, long-term effects of the exercise on the muscular system. Thank you, all the very best.